Today we will discuss about the chapter number 4, which is structure of atom. So till now we have discussed about these some models of this atom, like this one, जिसमें क्या क्या है, डाल्टन की थ्योरी, थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल एंड वन मोर मॉडल गिवन बाय बोर. तो इतने सारे मॉडल्स till now we have discussed, and today we will discuss three topics. One is subatomic particles, another one is valency, and third one is atomic and mass number, how they are written on an element and what they are. So ये चीजें ऐसी है, तीन चीजें जो आज हम डिस्कस करेंगे, and we will discuss some questions also if you time permits. Okay. So we know, after studying these atomic models, we know that there are three subatomic particles. कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, number 2 proton, number 3 neutron. And we have also discussed about their charge and their mass. We have, and who have discovered them. Okay, so one code was given to you, Pratt and C. Do you remember, students? Do you remember this code which was given in Yes, sir. the proton Yes, by sir. Rutherford, electron by Thomson, neutron by Chadwick? So this is the code by which we can remember who have discovered which subatomic particle. This is PR, means proton Rutherford, electrons Thomson, and neutron by Chadwick, C. So we have taken one initial. Okay. So electrons are the particles which are carrying negative charge, and protons are the particles which are carrying positive charge, and neutrons are neutral, so no charge, कोई चार्ज इसके ऊपर नहीं होता है. Okay, so in orbit, how the electrons are filled up, let us see. In the Bohr's model we have seen, the Bohr's model is stating that there are one in center of that atom is nucleus which is having neutron, and around it are there which are known as cells, in revolving around. So it is KLMN. So this is this thing which I am showing here in red is our nucleus which is having proton plus neutron, and the first cell, which is first orbit which is surrounding this nucleus, is known as K cell, and the number of cells, that particular serial number which is given to this K is denoted by N, and it is 1. It is 1. This is L cell, and here the serial number is what? N is equal to 2. Then M cell, N is equal to 3, and lastly KLMN 4. So these are the cells in which electrons are to be filled up. So how many electrons, maximum electrons, can be accommodated in a cell is denoted by one formula, that is 2n square. Here n is denoting the number of a cell, number of a cell, इसको हम डिनोट करते हैं. तो ये फॉर्मूला आपको सभी को याद रखना है. तो हियर अगर आपको कोई बोले कि हाउ मेनी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एकोमोडेट इन द के सेल, तो आपको के का एन कितना है? 1 है, एंड पुट द वैल्यू इन प्लेस ऑफ एन, एंड 1 is 2 into 1 square is equal to 2.
So how many highest number of electrons can accommodated in this K cell? Only 2. अब मैंने ब्लू से इसको बना दिया है. ओके. नेक्स्ट अगर आपको कोई पूछता है कि L में कितने भरेंगे, तो भैया 2 और n इज इक्वल टू L के लिए 2 है, तो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 2 8. इसमें हाईएस्ट आ सकते हैं. लेट मी ड्रॉ 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट इसमें आ सकते हैं. बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें 8 आए तब होगा. ये तो हाईएस्ट नंबर है बेटा. इट इज द मैक्सिमम नंबर दैट कैन बी एकोमोडेटेड. 8 से 9 नहीं होगा, 8 ही होगा. इसमें 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम. ओके. इसके बाद में फिर देखते हैं. 1 सेकेंड. ओके. about this m is equal to m में n कितना है? n is 3. so let us put this one into formula. 2n square 9 into 2 is equal to 18. so how cannot be accommodated in m cell? कितने हो सकते हैं बेटा? 18 हो सकते हैं. तो आप ये फॉर्मूला है बेटा. इसमें कोई फॉर्मूला डिजाइन करते हैं तो उसका कोई मतलब होता है ना भाई. जैसे मैथमेटिक्स में आप पूछते हो कि ये फॉर्मूला 2 ही क्यों है? 2 क्या है ना, सबके लिए नंबर आ गया. 2 तो सबके लिए बराबर है कि मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. उस हिसाब से उसको डिजाइन किया है. यहाँ पे मिनिमम 2 तो सब में आ रहे हैं ना भाई. जैसे वी आर हैविंग द K cell, इट इज हैविंग हाउ मेनी मिनिमम इलेक्ट्रॉन्स? 2. तो इसलिए इसको 2 को डिनोट कर दिया है. ठीक है ना. एन इज जस्ट नथिंग द नंबर ऑफ सेल. ओके. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 and 18. so this is the maximum number a m cell can have. okay. next one is n. Capital N. 2 into n for n cell is 4 square. 4 into 4 16 and 16 into 2 32. so highest number of electrons that can be accommodated this one in this last. it cannot be last, but we can say that elements which we are studying having maximum number of n cell. तो इसलिए n तक हमने रखा है, ज्यादा भी हो सकता है उससे. ठीक है ना. ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एकोमोडेटेड 32. सो दिस इज हाउ वी कैन नो. हाँ बताइए. यस. एन के आगे वो हो जाएगा एन ओ पी लाइक दिस वन. इट इज अवर इंग्लिश अल्फाबेट, इसीलिए रखा है ना. के कोई ऐसा थोड़ी है कि किसी साइंटिस्ट ने उसमें देखा है कि के ही है उसमें लिखा हुआ. वहां पे के लिखा हुआ थोड़ा. ये तो हमने दिया नाम उसमें, राइट ना. ये तो हमने नाम दिया बेटा. ओके. यस सर. तो मैं वो ही पूछ रही थी कि कोई भी वेरिएबल दे सकते हैं ना उसके बाद. अब देखो यहाँ पे n इज इक्वल टू 1, L फॉर L इज इक्वल टू 2, फॉर M n इज इक्वल टू 3, N फॉर N इज इक्वल टू 4, फॉर O n is equal to 5, for P n is equal to 6, and accordingly put the values in formula 2n square. So 2 into 1 square is equal to 2. Here if we put, we will get 8. Here we will get 18. Here we will get 32. और यहाँ पे जैसे 2 into 5 5 स्क्वायर तो 25, 25 को मल्टीप्लाई करो 50. ठीक है ना. 50 हो जाएंगे. और यहाँ पे 2 into 6 स्क्वायर 36, 36 को 72. ये so on. We can continue it. So don't get confused in that one.
But what is happening, the number of electrons which the elements which we are studying, it ends here till now, but it can be more than n also, right? Is it clear to all of you? सर एक और डाउट था हाँ, yes, yes students. तो जो ये जो शेल्स है वो कितना बेटा देखो, दिस क्वेश्चन इज वेरी ट्रिकी. देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो अभी तक खोजे गए लगभग 120 के आसपास में है अभी, और ये दिनों दिन नए नए खोजे जा रहे हैं, ठीक है ना? तो एटॉमिक नंबर सीरियल में आता है उसमें. जैसे हाइड्रोजन का एक है, अपन हाइड्रोजन का एक देते हैं, फिर हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, इस तरह से 120 तक अपन ने सीरियल नंबर उनको दे दिया है, ठीक है ना? अब जितने जितने आते जाएंगे, जब आएंगे तो हो सकता है कि नंबर ऑफ सेल्स एन से भी आगे हो जाए. मेरा मतलब आप समझ रहे हैं, एन से भी आगे हो जाए. ये तो डिस्कवरी की बात है भाई. आज से 100 साल पहले तो ये कुछ था ही नहीं ना, ये चीजें थी नहीं कि KLM क्या होता है यहाँ पे. इन whenever we study the atomic model, तब तो कोई पता ही नहीं था ना, पर बाद में KLM रखा. अब हो सकता है कि आप लोग साइंटिस्ट बने, आपके आने वाली जनरेशन, इसके बाद में आने वाली जनरेशन कोई और काम करे, तो हो सकता है ज्यादा एलिमेंट्स बढ़े, तो हो सकता है कि नंबर ऑफ सेल्स इससे भी बढ़े. हो सकता है ना बेटा, इनफाइनाइट भी हो सकती है. वो तो साइंस की डिस्कवरी की बात है. अभी धरती के गर्भ में, इस एनवायरनमेंट में क्या क्या एलिमेंट छिपे हुए हैं, वो हमें बहुत सारी चीजें पता ही नहीं है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक बायोलॉजी का एक्सपीरियंस अपन एक बात लेते हैं कि बायोलॉजी ये कहती है कि 5 से लेके 7 मिलियन तक इस अर्थ पर स्पीसीज है. ये एक रफ डेटा है. ये 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है. अपन 5 मान लेते हैं, मान लो. इसमें से अभी 1.5 से लेके 2 मिलियन तक स्पीसीज की डिस्कवरी हुई है. 1 मिलियन में कितना होता है? 10 लाख होता है बेटा, ठीक? तो 1.5 से 2 यानी 15 से 20 लाख स्पीसीज खोजी गई है. अभी भी 30 लाख स्पीसीज खोजी नहीं गई है. मेरी बात समझे ना आप? तो डिस्कवरी जब जब होगी तो वो कहीं तक भी जा सकता है, उसका अंदाजा हमें भी नहीं है. ठीक है पियांशी, क्लियर? यस पियांशी. यस सर. नेक्स्ट टॉपिक इज वैलेंसी. और ये this is the topic which we have covered in previous class, so this will be our revision. so इस वैलेंसी का मतलब क्या है? ये सारी हाँ, बोर ने जो मॉडल दिया था उसने ये चीजें बताई थी. उसमें पहले वाले साइंटिस्ट ने नहीं दिया था. तो बोर का मॉडल जो है वो एडवांस्ड वर्जन है. बोर का मॉडल जो है वो एटॉमिक मॉडल में सबसे अभी तक का एडवांस्ड वर्जन माना गया है इस एटॉमिक मॉडल को स्टडी करने में. तो वैलेंसी मीन्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which are in the outermost cell. जो आउटरमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं बेटा. वैलेंस इलेक्ट्रॉन. आउटरमोस्ट सेल, इट कैन बी K, इट कैन बी L, इट कैन बी M, इट कैन बी N. कोई सा भी हो सकता है इसके अंदर. तो जो बाहर, सबसे बाहरी जो आउटरमोस्ट जो इसका सेल होता है उसमें पाए जाने इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं. एंड इट इज दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स विच आर डिसाइडिंग द वैलेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट. उसकी वैलेंसी को ये डिसाइड करते हैं, डिटरमिन करते हैं. अब कैसे देखिए, जैसे मान लो कि हमने एग्जांपल लिया लिथियम का, कि लिथियम की वैलेंसी कितनी है. तो पहले तो आपको लिथियम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए. कितना है बेटा? 3 है. कितना है? 3 है. ओके. ओके, तो लेट अस ड्रॉ द सेल्स हियर. तो अब 3 है तो एटॉमिक नंबर क्या है? वो उसके इलेक्ट्रॉन को डिसाइड हमें बताता है. तो कितने इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर? 3 है इलेक्ट्रॉन. कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? 3 होंगे. 3 है. तो K में कितने बनेंगे? K 2n² का फॉर्मूला लगाओ. 2 into 1 इज इक्वल टू 2. तो इसमें हाईएस्ट कितने आ सकते हैं बेटा? 3 आ सकते हैं. ओके, बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन इज लेफ्ट. दैट विल बी फिल्ड अप वेयर? इन दिस
इन दिस एल सेल में भरेगा ये। अब एल सेल की कैपेसिटी कितनी है देखो, 2 इंटू 2 8 है, 8 है, पर आया कितना है, तो एक है, कोई जरूरी नहीं कि 8 भरे, ये मैक्सिमम कैपेसिटी है उसकी। एक बस में 40 सवारी बैठ सकती है, इसका मतलब ये नहीं 40 ही बैठे तभी चलेगी, वो 3 सवारी बैठने पर भी चल सकती है, वही बात यहाँ पे। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो लास्ट में जितना उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स उस आउटर मोस्ट सेल में होंगे, वही उसकी वैलेंसी को बता। तो इसकी वैलेंसी लिथियम की कितनी होगी बेटा, 1। इलेक्ट्रॉन्स है 1 है, 1 है, तो उसकी, अच्छा अब इसमें सर -1 होगी ना। अब मेरी बात माइनस, वो बात माइनस प्लस की नहीं कर रहे हम, वैलेंसी में माइनस प्लस नहीं होता है, वो उस केटाइन एनाइन की बात जब हम करते हैं तो उसको बताते हैं। यस यस स्टूडेंट्स, यस, someone was asking the question। सर एक बार फिर से बता दीजिए, वैलेंसी निकालना। हाँ, वैलेंसी निकालना बेटा, पहले सबसे पहले आपको क्या है, उसका एटॉमिक नंबर उस पर्टिकुलर एलिमेंट का होना पता है। तो मैंने आपको बताया कि आप कैल्शियम तक याद कर लीजिए। आपको मैंने फॉर्मूला सब बताया है कि कैसे आपको याद करना है, कोड भी बताया था मैंने क्लास में, लीबेब, स्नो, फने, ठीक है ना, नामज, अलसी, पस्कल, आर, पोटेशियम, कैल्शियम का 20 हाईएस्ट, और हाइड्रोजन का कितना है, 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट्स का आप एटॉमिक नंबर याद कर लीजिए, वही उनका इलेक्ट्रॉन नंबर होगा। समझ गए, ये आपको याद करना है बेटा, मेमोराइज कर लीजिए इसको अच्छे से। एटॉमिक नंबर याद है तो आपको इलेक्ट्रॉन नंबर पता लग जाएगा, राइट। सो अब मैं एक दूसरा एलिमेंट लेता हूं, यहां पे लेता हूं मैं ऑक्सीजन। तो अब कई बच्चे बोलेंगे सर हमें तो याद नहीं रहता, देखो सीक्वेंस में याद करो उसको। हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ये 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, बस हो गया याद, कोई दिक्कत नहीं है। सो लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन हियर। हाउ मनी, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ दिस वन। ओके, तो कोई बता सकता है मेरे को कि ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर कितना होता है। सर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। 8 होता है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा, 8 हो गया ना। एटॉमिक नंबर वैसे थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है बेटा, एटॉमिक नंबर किसको, प्रोटॉन को इंडिकेट करता है, ठीक है ना, तो वही उसका इलेक्ट्रॉन नंबर होता है। ओके, सो हम क्या करेंगे, अब सेल बनाएंगे। देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, के और एल से हमारा काम हो जाएगा। तो ये तो हमारा क्या हो गया, सेंटर में वी आर हैविंग दिस न्यूट्रॉन्स, सॉरी दिस न्यूक्लियस, एंड दिस इज के में कितने आएंगे बेटा, 2 आएंगे, तो 2 भर दिए। बच्चे कितने, सॉरी बच्चे कितने, 6 बचे। तो एल की कैपेसिटी कितनी है, 8 आने की है, हाईएस्ट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 1 2 3 4 5 6, कौन सा, नहीं तो बेटा ये तो अपने को पता होना चाहिए ना कि के में कितने बढ़ते हैं हाईएस्ट। 2n² फॉर्मूला लगाओ, 2 इंटू के का सेल नंबर कितना है, के में n की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक, तो 1² लिखो, तो आ गया 2। यहाँ पे एल में n कितना है बेटा, 2 है। तो फिर हाँ, सर फिर तो एक जना बोलो। Yes, one student ask at a time. Okay. So 6 electrons will be filled up in the outermost cell, that is L. L इसका outermost cell है जिसमें 6 electrons भरे जाएंगे। अब इसका outermost cell कौन हो गया, L हो गया। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा, कितने हो गए, 6 हो गए। नहीं 2 कैसे हो गए बेटा,
लास्ट वाले एल में, इसमें तो ये ऑक्सीजन 8 से माइनस करेंगे। 8 तो हाईएस्ट कैपेसिटी है, पर आ कितने रहे हैं? 6 आ रहे हैं इसमें ऑक्सीजन के लिए। हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं बेटा, 6 आ रहे हैं। तो आउट वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 है, बट वैलेंसी निकालनी है हमें। तो अगर वैलेंसी ये बोलती है कि आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 और 4, इफ 1 2 3 4 the electrons are till 4, then the same number of valence electron will be valency, treated as valency. But if it is more than 5, then it will be deducted from 6. 6 से उसको डिडक्ट, उसको अपन घटा देंगे उसको, तो उसकी वैलेंसी आ जाएगी। तो यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 6 है। तो 5 से ज्यादा हुए कि नहीं बेटा? 5 से ज्यादा हुआ है तो हम उसको 8 में से घटा देंगे, तो हमारा वैलेंसी कितनी आ जाएगी ऑक्सीजन की? 2। कितनी आ गई? 2 वैलेंसी हमारी इसकी आ गई। तो इस तरह से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी, जैसे आप कोई भी एग्जांपल बोलो, अपन तो 20 तक कर रहे हैं, उसका एग्जांपल बोलो, आई विल सोल्व दैट प्रॉब्लम। सर हाँ, सर पोटेशियम। पोटेशियम की देखते हैं, चलो किसकी? हाँ, जीरो वाली बात भी करेंगे, जीरो वाली बताऊंगा अभी मैं आपको जीरो कैसे आती है। अब पोटेशियम की बात करें, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 19 है बेटा। कितना है? 19 है। तो 19 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है सॉरी। तो के में कितने भरेंगे? 2 भरेंगे। एल में कितने भरेंगे? 8। अभी भी कितने बच गए? अभी भी कितने बच गए? 9 बच गए। 9। के एल एम, एम की कैपेसिटी कितनी है बेटा? 18 है, पर 9 भरेंगे, ठीक है, 9 भर दिया हमने। अच्छा, अब अब दूसरा, अपना माइक ऑफ करो बेटा, माइक ऑफ कर दो। ओके, अब पेज दूसरा आ गया। अब आप लोग बोलेंगे सर आपने तो बोला कि 5 से लेके ऊपर है, तो उसको 8 में से घटा दो। ओके, अब देखो, अगर 5 से लेके 8 तक आता है, तो अपन उसको किस में से घटा रहे हैं? 8 में से घटा रहे हैं बेटा, 8 में से घटा रहे हैं ना क्या? ठीक है, तो हमें उस चक्कर में अभी भी नहीं पढ़ना है, सीधा ही सीधा उसको, अगर 8 से ज्यादा है, अगर वो 8 से ज्यादा है, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, तो उस नंबर में से 8 को घटा दीजिए आप। तो देखो ध्यान से सुनो, 1 2 3 4 तक किसी की वैलेंसी है, तो वो तो डायरेक्टली वैलेंस इलेक्ट्रॉन से उतनी उसकी वैलेंसी हो जाएगी। 5 से लेके 8 तक है, तो उसको क्या करना है हमें? 8 से माइनस कर देना उसको, 8 से क्या कर देना? माइनस कर देना है। समझ गए? अब अगर वो 8 से ज्यादा है, सर जो ये भी आप बताए वो समझ में नहीं आया। समझ में इसलिए नहीं आया कि ध्यान नहीं दिया आपने। देखो मेरी बात सुनो, दोबारा से बताता हूं आपको। ओके, अगर किसी के आउटर मोस्ट सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं वो उसकी क्या बन जाएगी? उतनी ही वैलेंसी बन जाएगी। ये क्लियर है बेटा सबको? एग्जाम्पल बताया ना बेटा, लिथियम का बताया था आपको, लिथियम का बताया था मैंने कि लिथियम की एटॉमिक नंबर 3 है, तो लिथियम के आउटर मोस्ट सेल में एल में तो बढ़ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, के में सॉरी के में, और एल में बढ़ेगा 1, तो इसकी आउटर मोस्ट सेल में आउटर मोस्ट कितना इलेक्ट्रॉन है हाईएस्ट बेटा? 1 है। 1 है तो 1 उसकी क्या हो जाएगी? वैलेंसी होगी ना? वैलेंसी। ओके सर। ओके, अगर वो 5 6 7 या 8 है, तो उसकी वैलेंसी क्या होगी? हमें 8 में से माइनस करने के बाद में जो हमें नंबर मिलता है वो उसकी वैलेंसी हो जाएगी, वो उसकी क्या हो जाएगी? वैलेंसी, जिसको मैं एक्स लिख रहा हूं। जैसे एग्जांपल ऑक्सीजन हमने लिया, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में भी हमने देखा कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा? 6 थे। तो यहाँ कितना है हो गया ना ये, तो इस 8 में से माइनस क्या कर देंगे अपन? 6 कर देंगे। वो करने के बाद में जो आती है वैल्यू, वो हमारी क्या हो जाएगी? वैलेंसी हो जाएगी। यहां तक क्लियर सबको? हाँ, यस सर। आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट।
आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। यही आपको मैं बात समझाने की पोटेशियम वाले में बात कर रहा था। पोटेशियम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा? 9 है। कितने हैं? 9 9। है। अब अगर 9, 10 या 100 ऑन है तो इसको आप सीधा क्या करो, उस पर्टिकुलर, जैसे मान लो 9 आया हमारा, उस एक, या मानो क्वेश्चन मार्क लिख रहा हूं जितने हैं उसमें, लिख रहा हूं जितने हैं उसमें से -8 कर दो आप। तो जैसे मान लो हमने 9 लिया, ठीक है ना? तो पोटेशियम में क्या है, 9 - 8 तो कितना आ जाएगा बेटा? कितना आ जाएगा? 1। 1 इसीलिए हम सर 1। तो इसीलिए उसको प्लस माइनस, जो भी वो प्लस माइनस वाली बात भी हम करेंगे लेटर ऑन। बट अभी आपको क्या है वैलेंसी, तो पोटेशियम की वैलेंसी कितनी है बेटा? 1 है। समझ में आ गया सबके? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर एक डाउट है। हाँ Yes, बोलिए। sir. यस, टेल मी। सर अगर कौन सा? सिक्स। एम मतलब लास्ट शेयर में जो एम है उसमें 16 अगर पूरी भर जाए तो उसके बाद फिर एक भी नहीं मतलब कहने का मतलब आपके के की जैसे 2 बढ़ जाए, एल की जैसे 8 हो जाए, एम की जैसे मान लो 32, सॉरी 18 है, बचा। 18 बढ़ जाए, जैसे एम में 18 होता है, पूरा बढ़ जाए, तो वो बेटा उसी पॉइंट पे मैं आ रहा हूं कि अगर किसी में ऐसा है तो उसको हम बोलेंगे इनर्ट। इनर्ट या नोबल गैस, उसकी वैलेंसी 0 होती है। अगर पूरा भरा हुआ है तो दैट इज सेटिस्फाइड। इलेक्ट्रॉन लेना देना क्यों होता है? वैलेंसी अपन शो करते हैं, क्योंकि वो या तो इलेक्ट्रॉन देता है या किसी से लेता है अपना। उसका टारगेट है कि आई मेंटेन द ऑक्टेट कॉन्फिगरेशन। मेरे अगर आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन अगर हैं, या जितने उसमें इलेक्ट्रॉन, जितने मैक्सिमम कैपेसिटी उतने भरे हुए हैं, तो वो उसकी वैलेंस हो जाती है। कितनी हो जाती है? कितनी हो जाती है? कितनी हो जाती है? 0। जैसे मान लो हमने बात की, जैसे एक अपन एग्जांपल ले लेते हैं, नियोन का अपन एग्जांपल ले लेते हैं। नियोन का जो है एटॉमिक नंबर वो कितना? 10 है। 10 है, 10 है। रुको इसको मैं ऐसे समझाता हूँ। नियोन एटॉमिक नंबर इज 10। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा? टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो के में कितने भरेंगे? 2। और एल में कितने भरेंगे? 8। तो 8 - 8, 0। नियोन, ऑर्गन और ये फ्लोरीन, सॉरी, ये कुछ ऐसी गैसेज होती है जिनका जो वैलेंसी होती है वो 0 होती है और वो किसी से रिएक्शन नहीं करती है। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज इनर्ट। इनर्ट मतलब इनएक्टिव और नोबल गैस। ठीक है ना? ठीक है ना? नोबल गैस इनको हम बोलते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया किसी का 0 क्यों है। 0 इसलिए है कि में जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे वो पूरे के पूरे हैं। राइट स्टूडेंट्स? हाँ। आप बता रहे हैं हम्म। हाँ स्टूडेंट्स, जो इनर्ट होते हैं उनको उसमें क्या है ना, आपको जरूरी नहीं है कि इनर्ट जो है वो गैस फॉर्म में हो। भाई जिस फॉर्म में है उसी की बात कर रहे हैं, पर ज्यादातर ये देखा गया है कि जो इनर्ट जो एलिमेंट्स हैं वो ज्यादातर गैसियस फॉर्म में है। नॉर्मल टेम्परेचर पे वो किस गैस बेटा? गैसियस फॉर्म में रहते हैं, इसलिए इनका गैस नाम दिया गया उनका। जैसे पानी है, तो पानी ज्यादातर केस में क्या रहता है बेटा? लिक्विड रहता है कि वेपर रहता है? बताओ किस फॉर्म में रहता है? वेपर में कैसे रहता है? ज्यादातर केस में लिक्विड रहता है। समुद्र में पानी है, नदी में पानी है, ज्यादातर केस में लिक्विड है। इसलिए हम क्या बोलते हैं? बोले पानी लाओ। पानी जैसा तरल पदार्थ हम बोलते हैं, पानी जैसा लिक्विड हम बोलते हैं। ज्यादातर केस में लिक्विड हो, वेपराइज भी है, पर वो लिक्विड फॉर्म उसकी ज्यादा है, सॉलिड फॉर्म में भी है। ठीक है ना? इसलिए उनका नाम, वो गैसियस फॉर्म में रहती है।
time they are noble gases are in gaseous form. That's why we are calling them gaseous. ठीक है? Okay. Now, how to write an element's mass number and its एटॉमिक नंबर. जैसे हमें नाइट्रोजन का यहाँ पे एग्जांपल है, तो उसके नीचे की ओर लेफ्ट साइड में हम नीचे की ओर क्या लिखते हैं, उसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं, और ऊपर की ओर क्या लिखते हैं हम, मास नंबर, और इसका मास नंबर है 14. तो एटॉमिक नंबर का मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं इसके अंदर, वो उसका एटॉमिक नंबर होता है. मास नंबर क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स दोनों को जो कितने, उसमें कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन्स है, वो उसका क्या होगा, टोटल उसके काउंट को बताएगा. तो इस तरह से हम कोई भी एलिमेंट में देखते हैं तो उसके ऊपर की ओर ऊपर वाले में सुपर स्क्रिप्ट में लेफ्ट साइड में हम उसका मास नंबर लिखेंगे, एंड इन द सब स्क्रिप्ट वी विल बी राइटिंग व्हाट, एटॉमिक नंबर. Or atomic number is nothing, the total number of protons in that element, and mass number is total number of protons and neutron in that particular element.